Hello everyone, welcome to Sarkari. Today we are discussing the Hindu newspaper of December, January 10th. The news we discussed day before yesterday regarding the accident in Japan, we should learn from that. And that was talking about the ethical governance that is being promoted by the Japanese Airways. But this news talks about Boeing 737 MAX of an Indian airline had missing component. DGCA, that is Director General of Civil Aviation, says operator discovered a washer in the rudder control system was missing. So, what are the problems with the current DGCA? We discuss in detail. Second would be the importance of the Japanese model, which we can write in paper GS paper 3, Civil Aviation. One time inspection. Then coming to the next article, Indian UK signed deal on defense collaboration. We discuss in detail regarding the defense collaboration which India can do. First is in jet engine. Second would be the Indo-Pacific region, the collaboration with the AUKUS, because UK and US both is pioneer in the nuclear technology, submarine nuclear technology. India can also collaborate with that. Then third would be regarding the retrofitting of the existing jets in India, for example, Jaguar. Music maestro Rashid Khan passes away at 55. He was an Hindustani classical singer. So there is two school of singers, Hindustani classical and Carnatic. So Ustad Rashid Khan passed away in Kolkata. Regarding this statement, what is your comment, Mansi? Partially built Ram temple being inaugurated for the political advantage, says Sankaracharya. I would say that again, this is a political statement, and we've talked about ki it is not just really only associated with religion and promoting only one religion or promoting Hinduism. It is about the economy of that region. So I wouldn't say that again. I'll not support this I statement. partially stand with Shankaracharyas because they have said that partially built Ram temple is not totally built, but it has been inaugurated just before the election 2024. जब पूरा बन जाएगा तब करना चाहिए था, लेकिन हाफली जब बना है तब उसको इनॉग्रेट किया जा रहा है. तो देर इज सम अमाउंट ऑफ ट्रूथ इन हिज स्टेटमेंट एंड रिगार्डिंग दैट it is being inaugurated for the political advantage. 1008 Sankaracharya of Jyotish Peeth, उत्तराखंड. क्योंकि अगले साल भी किया जा सकता था, लेकिन इस साल इलेक्शन 2014 में 2024 में. Chlorine gas leak causes panic in Dehradun. We discuss in detail विशाखापट्टनम जो पॉलीमर वहां पे गैस लीक हुआ था आज से 1 साल पहले, 1-2 साल पहले. देन राइट नाउ इन इन्नौर वहां पे भी गैस लीक हुआ था. और अभी फिर से क्लोरीन गैस लीक कॉजेज पैनिक इन देहरादून. तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एरियाज which we can what are the important steps which we can do in the disaster management? तो first would be कि strong audit control, safety audit control होना चाहिए on the plant, every chemical plant in India. Second would be कि लोकल एसडीए में, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एंड डीडीए में, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिस्पांस टीम, उनके पास डेटा होना चाहिए ऐसा इंडस्ट्रीज का दैट दैट आर वेरी ओल्ड और दे रिक्वायर रेट्रोफिटिंग. थर्ड वुड बी ऑलरेडी देयर शुड बी अ डीजी स्टैक, हमेशा बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिजास्टर कि बेस्ट प्रैक्टिसेस की यूज कर सकते हैं इंडस्ट्रियल रिलेटेड डिजास्टर को. और मानसी एक कुछ नया इनोवेटिव पॉइंट आया था दिमाग में, ये तो डिस्कस कर चुके. और तो ठीक इसके है. अलावा मेजर एक्सीडेंट हजार यूनिट्स हैं, तो उनको भी स्ट्रेंथन करना चाहिए ताकि जल्दी वो साइट पहुंच के काम कर पाए. ठीक है.
we discussed कि how in women is currently becoming the DGP. CISF के बाद नीना सिंह जी CISF के DG बनी थी आज से एक हफ्ता पहले, और अभी फिर रश्मि शुक्ला, she have taken charge as Maharashtra DGP. She is becoming the first women cop of the state. तो ये दोनों एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं। वेमेन एम्पावरमेंट में एथिक्स एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं इनके नाम, खास करके नीना सिंह की, इनको प्रेसिडेंट पुलिस अवार्ड भी मिला था। CEO held in Karnataka for alleged murder of the son in Goa. 39 years old Bangalore based woman, and she is the CEO of AIF developer company, and she had filed divorce case against his husband, और बच्चे के कस्टडी के लिए there was a ego between the two, and she killed her own son, and she packed his body into the suitcase, और वो लेके जा रही थी तो पकड़ा गई बीच में। She was CEO of Indian आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप एथिकल की टीम में थी। तो इसमें एक सबसे बड़ा इशू इसमें मुझे लगा कि हम लोग जब बात करते हैं कि माँ और बेटे, माँ और फिर बेटी का, तो जो रिलेशनशिप होता है इट इज़ वेरी प्योर। तो ऐसा क्यों सामने में आया, क्या हो सकता है प्रोबेबल कॉज, मानसी? ये औषिक जो आपने मेंशन किया कि देयर वाज ईगो राइजिंग अबाउट द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड, तो कहीं ना कहीं उस चीज ने ओवर पावर कर दिया। हम्म। अगर अगर लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है चाइल्ड के कारण, अगर आपको CEO में बनना है तो फिर आप चाइल्ड कस्टडी दे देते हस्बैंड को इसमें। आई थिंक दैट वुड बी मोस्ट प्रोबेबल केस, लेकिन ऐसा नहीं हुआ इसमें। इमोशनल इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, वो भी हाईलाइट करता है ये केस। यस, इमोशनल इंटेलिजेंस। Handrail of the flyover at the Sannidhanam collapses due to heavy rush at Sabrimala. Sabrimala से related we discussed in detail कि women were not allowed. 2018 में there was a judgment by the Supreme Court in which the women were not currently allowed towards the Lord Ayappa Sanctum Sanctorum. तो उसमें एक important term था essential religious practices, तो उसको यूज किया गया था। तो हैंड ऑफ द फ्लाईओवर, तो ओवरऑल क्वेश्चन उसमें उठता है रिगार्डिंग द क्राउड कंट्रोल। कितना क्राउड को कंट्रोल करना चाहिए हर जगह देखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू द टूरिज्म पर्पस ऑल्सो, विद रिस्पेक्ट टू द पिलग्रिमेज ऑल्सो। तो क्राउड कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो फर्स्ट वुड बी कि प्रॉपर एग्जिट एंड एंट्री होना चाहिए। सेकंड, आपके पास एक मैकेनिज्म होना चाहिए, डिफरेंट एग्जिट मैकेनिज्म होना चाहिए। अब पास सिस्टम होना चाहिए कि इतना पास मिलेगा इतने लोग जाएंगे। तो एंट्री एग्जिट में जो अमाउंट ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल वो सेम रहना चाहिए ताकि फिर बढ़े नहीं। यहाँ पे औशिक और हमने क्या हो पहले सकता ये है? भी बात की वी कैन स्टार्ट विद द प्रॉपर रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ऑनलाइन ट्रू। सिस्टम जो होगा, so that we can regulate the numbers of the pilgrims who are visiting. इवन हमने यस मथुरा के केस में बात करी थी, बाकी बिहारी टेम्पल में भी। यस कैपेसिटी भी देखी जा सकती है, जो भी प्लेस है उसकी कितनी कैपेसिटी है, उस अकॉर्डिंगली पासेज अलो किए जा सकते हैं। यस। ठीक है, 3 एरियाज हो गए हमने डिस्कस किए। कतील यक्षगना मेला इन कर्नाटका टू रिवर्ट टू ऑल नाइट शो फ्रॉम जनवरी 14। सेंचुरी ओल्ड यक्षगना मेला, दक्षिण कन्नड़ा। तो यक्षगना मेला इंपॉर्टेंट फॉर पीटी एग्जाम, वो पूछ देता है दक्षिण कन्नड़ा कर्नाटका में इंपॉर्टेंट है। और ये रात में होगा 10 PM से 9 6 AM। इट इज ए संस्कृत प्ले। यक्षगना के बारे में एक बार सर्च कर लो मानसी। ओके।
So regarding the India-UK defense minister visit, important area that has been discussed is the R&D signed between the DRDO and UK Defense Science Technology Laboratory, people-to-people exchange, defense researcher collaboration between the two countries, defense industrial cooperation. स्पेसिफिक एरियाज नहीं बात हुआ, लेकिन दो एरिया से बात हुआ है कि एक तो डिफेंस डीआरडी और यूके डिफेंस लैब का कोलैबोरेशन और सेकंड इज पीपल टू पीपल एक्सचेंज रिसर्चर कोलैबोरेशन। प्लान Yeah, डिस्ट्रप्शन। Yakshagana. एक बार Yakshagana. It has been believed to be evolved from pre-classical music and theatre during the period of Bhakti movement. The origin is somewhere close to 11th century, and it involves like dance, music, dialogue, costume, makeup, and stage techniques. Apart from this, it is known by some different names also, like Atta. Atta means play, and it is also there in the state of Tamil Nadu. वहाँ पे this is known as the Thenku Thittu. So these are different names of it. Okay. Planned disruption are against democracy. Om Birla, our speaker, have said that dignity of the house is compromised, says the proceeding are often disrupted without logic or debate, leading to loss of productivity. So, according to me, it is a joint responsibility of both the opposition and the government to get a consensus or to even debate or important areas rather than disrupting the normal proceeding of the house. Under rare circumstances, when the issues raised by the opposition is regarding to national interest or any other thing that is regarding the democratic spirit, तो उसमें disrupt कर सकते हैं, लेकिन overall there should be a general tradition of discussion and debate and voting in house. तो ये दोनों के रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर बार एजेंडमेंट होगा तो फिर से प्रोडक्टिविटी कम होगा, और लगातार बिल पास करेंगे तो उससे फिर अकाउंटेबिलिटी कम होगा। तो ये दोनों बैलेंस इंपॉर्टेंट है। In the first since 2019, Hurriyat chief, Hurriyat is separatist board outfit in Kashmir. It always talked about separatism, कश्मीर को अलग करना चाहिए इंडिया से, एंड फॉर द डिफरेंट उसको कंट्री बनाना चाहिए। तो कश्मीर चीफ क्लेरिक हुर्रियत चेयरमैन मिर्जा उमर फारूक हैज बीन अलाउड टू ट्रैवल दिल्ली। तो बस इसमें बस हुर्रियत पता होना चाहिए, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस क्या है, उनका आइडियोलॉजी क्या। फिर सेकंड इज पैनल कैन लुक इनटू द एसटी स्टेटस ऑफ चीन कुकीज मणिपुर। तो द क्लास दैट हैज बीन टेकन in Manipur 2023 between the Kukis and the Metis was over the ST status given to the Metis people. Already there is a ST status given to Chin Kukis etc. लेकिन अभी मणिपुर सीएम बोलते हैं कि there should be a review of the ST status. क्या उनको मिलना चाहिए? Kuki is a collective term of various tribes मणिपुर में. Chin is among one of them. Chin community also share ethnic city of the Mizos of Mizoram, section of resident in neighboring Myanmar. The Metis account for 53% of the population, and other tribe, Nagas and Kuki, constitute about 40%. They reside in the hill district, Imphal Valley. तो इम्फाल, अगर आप मणिपुर मैप देखोगे तो मणिपुर अगर एक सर्कल है तो इम्फाल है वो एकदम सेंटर पे, और वो वैली है और चारों तरफ जो हिल है। तो हिल में कुकीज और मिटीज नागाज रहते हैं, तभी उनको सपोर्ट मिलता है नियर बाई नेबरहुड म्यांमार से आर्म्स प्रोक्योरमेंट में, ऑफ एनएससीएन भी उसी के सपोर्ट करते हैं हिल के थ्रू, क्योंकि हिल इज ए वेरी टफ टेरेन और सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत दिक्कत होता है ऑल आउट ऑपरेशन करने के लिए। और जब मणिपुर में जो मिथी एलिट है तो वैली में रहेंगे, उनके पास जॉब ज़्यादा रहेगा, सिक्योरिटी ज़्यादा रहेगा। तो ये डिफरेंस है। तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट नया चीज़ जो मुझे नहीं पता था वो है कि क्योंकि इज ए कलेक्टिव नेम ऑफ वेरियस ट्राइब्स ऑफ मणिपुर, चीन उसमें से अलग एक नाम। Regulation by statute does not rob a veracity of minority status. Justice Chandrachud.
CGI Justice D.Y. Chandruchid have said that Article 30 that is being given to the minorities to establish and administer educational institution of the constitution does not emphasize that the administration of the education institution ought to be absolutely by the member of the minority community. मतलब कि when we discuss about the right to freedom of religion from Article 25 to 30, उसमें 25, 20, 26, 27, 28, उसके बाद फिर राइट टू मैनेज द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द माइनॉरिटीज। तो माइनॉरिटीज में दो है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एंड रिलीजियस माइनॉरिटी। तो आर्टिकल 30 में बात किया है कि आप माइनॉरिटी के पास हक है कि दे कैन एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन और दे कैन रन इट ऑल्सो। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एलिमेंट रहेंगे उसके अंदर में, उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो सकता है ऑन द इश्यू ऑफ मैल प्रैक्टिसेस, और वो सही चला रहे कि नहीं। ऑन द एस्पेक्ट ऑफ द रिलीजियस एस्पेक्ट उनके पास फ्रीडम होता है, प्रोवाइडेड दैट इट इज अंडर द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लाइक पब्लिक मोरालिटी, हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर एक्सेट्रा। तो आप प्रमोट कर सकते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं माइनॉरिटीज के लिए। तो दो माइनॉरिटी की बात करते हैं, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस। तो इसमें बात कर रहे हैं चंद्रचूड़ जी CGI, बोलते हैं कि उनके पास राइट है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो कमिटी मेंबर होंगे वो सिर्फ माइनॉरिटी से नहीं हो सकते, ऐसे जरूरी नहीं लिखा हुआ है। आप मेजोरिटी के भी रखिए या कोई दूसरे कम्युनिटी के भी रख सकते हैं। तो ये बात हो रहा है। द एडमिशन कुड बी सेकुलर एंड स्टूडेंट फ्रॉम एनी कम्युनिटी कैन गेट एडमिशन। जो रिलीजियस एस्पेक्ट उसको पढ़ा सकते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा सेकुलर होगा, इसलिए इंटरफेरेंस हो सकता है बाय द स्टेट। तो ये लिखा हुआ एस्टैब्लिश फॉर द पर्सन बिलोंगिंग टू द रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो ये आर्टिकल 30 का। इलाहाबाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अलावा और जैसे किसी इंस्टीट्यूट को देखते हैं जो प्रॉपर माइनॉरिटी के लिए हो, वो जैसे कौन से सेंट होंगे? स्टीफन हो गए, सेंट जेवियर हो गए, इलाहाबाद इंस्टीट्यूट हो गए, वैसे बहुत से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इंडिया में। तो अब समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर इसको कनेक्ट करना चाहिए बासवन्ना जी का जो एक तो लिंगायत मूवमेंट से, कि लिंगायत इज टॉकिंग अबाउट माइनॉरिटी स्टेटस। वाई? बिकॉज उनको आर्टिकल 30 के अंदर में वो दे हैव द राइट टू स्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन एंड रन इट ऑल्सो, जो अभी नहीं मिलता है। दे आर कंसिडर एज ए हिंदू फोल्ड के अंदर में। तो ये एक प्रिविलेज मिलता है, इसलिए वो हमेशा डिमांड करते हैं। लिंगायत भी डिमांड करते हैं, कभी कभी रामकृष्ण परमहंसा उनके जो बॉडी है इन द कोलकाता वो डिमांड करते हैं कि मुझे माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए। और जो संस्कृत स्पीकिंग लैंग्वेज है उसके भी जो लिंग्विस्टिक एक्टिविस्ट है वो भी डिमांड करते हैं कि मुझे माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए ताकि संस्कृत लैंग्वेज का प्रमोशन किया जा सके। रैपिड राइज इन वेब ब्लॉकिंग ऑर्डर्स सोर्स RTI। तो regarding web blocking, how can it be done and why it is done? Under the article section 69A, it is very important. 69A, 66A, it was violative of the feature of the constitution under the Shreya Shingal judgment, Supreme Court 2015। उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप कुछ भी ऑनलाइन लिखते हो दैट इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो आपका फ्रीडम एक्सप्रेशन कब किया जा सकता है। तो अगेंस्ट द गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी सेड कि सॉवरेंटी इंटीग्रिटी वाला पार्ट होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में सेडिशन नहीं लगना चाहिए। तो 66 हटा दिया गया, वो वेग था। तो 69 ये उसमें 69A आर्टिकल एक्ट ऑफ IT एक्ट अलाउज द यूनियन गवर्नमेंट टू ब्लॉक कंटेंट ऑनलाइन इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी, डिफेंस ऑफ इंडिया। तो सब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एंड फ्रेंडली रिलेशन, हार्म नहीं हो कोई कंट्री के बीच में, फॉरेन रिलेशन, पब्लिक ऑर्डर और प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट टू कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो इसके अंदर में 69A के अंदर आप प्रोविजन लगेगा और आपको बैन किया जा सकता है, आपको ब्लॉक किया जा सकता है, कोई भी साइट को ब्लॉक किया जा सकता है। तो तो सरकार गवर्नमेंट डिराइव्स पावर फ्रॉम दिस प्रोविजन 69A ऑफ IT एक्ट। तो RTI shows that there is increase in the internet use, and second is there is an increase in the web blogging orders by the government. So this questions ki purview of the right to freedom of expression, religion, right to freedom of expression, thought,
कितना होना चाहिए वर्सेस की सिक्योरिटी एस्पेक्ट एंड इंटीग्रिटी एस्पेक्ट ऑफ द कंट्री। तो ये बीच में बैलेंस करना जरूरी है। इसलिए हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का जब हम लोग लिखते बात करते हैं तो इसको भी हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की तरफ से देखना चाहिए कि देयर हैज टू बी सम फॉर्म ऑफ रीजनेबल बैलेंस, प्रोपोर्शनैलिटी में काम करना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट इंटरनेट कंटेंट जो वेब सर्विस है दे आर प्रोवाइडेड बाय द अमेजन वेब सर्विस, गूगल क्लाउड, क्लाउडफेयर। तो रिगार्डिंग वन की एस्पेक्ट की आईपी एड्रेस क्या होता है, तो ईच कंप्यूटर, ईच मोबाइल has this different encrypted code that is very unique to that device. It is called IP address. A simple language. Then Hindustan classical singer and music maestro Ustan Rashid Khan have passed away in Kolkata. He was born in Badaun, Uttar Pradesh. He received initial training from the maternal grand uncle Ustad Nishar Hussain Khan. तो जब हम लोग बात करते हैं कोई उस्ताद की तो दे ऑलवेज रिसीव फॉर्मल एजुकेशन एंड टोटली होम स्कूलिंग होता है उनका, और दे लर्न फ्रॉम देयर फादर, ग्रैंडफादर एक्सेट्रा। तो इसको बोल सकते हैं इंटेंजिबल हेरिटेज, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि हर एक जो उस्ताद होते हैं उनका एक अपना टोन होता है, डिफरेंट तरीके का राग होता है, तो इंटेंजिबल हेरिटेज का पार्ट हो सकता है। He came to the city with he came to ITC Sangeet Research Academy 1994 and was acknowledged as a musician at the academy. Firuzah Rashid Khan is a prominent Rampur Saswan Gaika, which is closely related to Gwalior Gharana. It is Gharana, it is part of the Hindustani classical music. Different घरानाज होते हैं, तो ग्वालियर घराना के एक रामपुर गायिका। इमोशनल कंटेस्ट अलाप, राग, बंदिश while giving expression to the meaning of the lyrics. Style of in has been influenced by legends such as Amir Khan and Bhimsen Joshi. He used different Sufi fusion such as Naina Piyasi, Amir Khusro, and he performed Jugal Bandis. जुगल बंदिश क्या होता है? जुगलबंदी we can say कि जब two or more singers are performing together and kind of a competition song होता है. Duet between two solo musicians, जुगल बंदी. Yeah. Regarding the IR paper 2, GS paper 2, Modi holds roadshow with UAE President Gujarat, opens Global Trade Summit. Yesterday we discussed every state tries to promote their own brand image through the Global Investment Summit. Like Tamil Nadu में वैसे ही हुआ, 6.3 lakh crore investment were drawn in, और वैसे गुजरात में भी हो रहा है अभी, तो उसमें प्रेसिडेंट यूए के बुलाया गया। तो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूए कहाँ कहाँ हो सकता है, तो पहला दिमाग में मेरा आता है IMEC कॉरिडोर, उससे पूरा मिडिल ईस्ट में पीस प्रॉस्पेरिटी आएगा, और देर इंडिया को एनर्जी सिक्योरिटी में मदद मिल सकेगा, और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी हो सकता है उनके थ्रू। फिर जो मिडिल ईस्ट से जो आएंगे गुड्स एंड सर्विस और इंडिया से प्रोड्यूस होंगे मेक इन इंडिया का प्रोग्राम के तहत में, वो डायरेक्टली उसके थ्रू रूट के थ्रू आप जा सकते हैं डायरेक्टली यूरोप, ग्रीस, ओमन, यूएई, सऊदी अरेबिया, इसराइल, देन ग्रीस, देन इटली, वहां से फिर कॉरिडोर कनेक्ट हो जाता है यूरोप में। तो पहला ये हो गया। सेकेंड वुड बी increase in a Indian diaspora. 30 to 35% of the population of UAE is currently Indian. तो इन्वेस्टमेंट इन दुबई और दुबई एंड गिफ्ट सिटी के बीच में कोलैबोरेशन को बढ़ा सकते हैं। और बात कर सकते हैं कि इंडिया का जो सॉफ्ट इमेज इन द मुस्लिम वर्ल्ड, सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड, वो बढ़ सकता है यूएई एंड सऊदी अरेबिया का कोलैबोरेशन के थ्रू। अब्राहम अकॉर्ड जो साइन किया गया था यूएई एंड इसराइल के आपस में, तो पीस एंड सिक्योरिटी आ सकता है। इंडिया कैन ऑल्सो कोलैबोरेट विद यूएई ऑन द वेरियस एस्पेक्ट। तो पहला IIT खोला जा रहा है वहां पे, सीपा कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, हर एक फील्ड में इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, इमिग्रेशन, IPR एक्सेट्रा। Then fourth would be anti-piracy measures. India can become the net security provider of that region.
जो अभी इंडिया ने भेजा था, डिस्ट्रॉयर इम्फाल एंड INS कोलकाता को, एंड इम्फाल, ये दो थे। कुड सीशल लीव्स मेक सैनिटरी नैपकिन मोर सस्टेनेबल इन इंडिया? तो सैनिटरी नैपकिन की बात करते हैं तो करेंटली द GST रेट इज 0, मानसी, कि 5%। तो ऐसा GST काउंसिल के अंदर किया जाता है कि कुछ प्रोडक्ट के अंदर में 0, 5 पे 12, 18, 26 ऐसा लेवी होता है। चेक करना पड़ेगा सैनिटरी पैड्स। तो सैनिटरी पैड को मोर सस्टेनेबल बनाने के लिए, क्योंकि जो बहुत गरीब परिवार से आए थे वो सैनिटरी पैड खरीदना बहुत मुश्किल होता है, 1 रुपीज भी कॉस्ट किसी के लिए ज़्यादा है। तो एक अफोर्डेबल रेट होना ही चाहिए, साथ ही सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए। तो Aztec and Mayan civilization perhaps were the first to make paper out of sessile leaves. Sessile leaves can be used. It has been used to make cloth, carpet, etc. It also used to make distilled alcohol beverages. Beverages. It is more hygiene is environmental sustainable. So Oshik, यहाँ पे तो सैनिटरी इसे पैड्स पे इम्पोर्टेंट, before 2018 there was 12% GST, but after that there is like no taxation. They're completely exempt from taxation. So zero हाँ GST हो 0 है गया. ना, हाँ। तो खूबी क्या है सीशल लीव्स के? इट हैज द एबिलिटी, अनकैनी एबिलिटी, ज्यादा एबिलिटी उनके पास, टू स्टोर वाटर एंड थ्राइव इन ड्राउट प्रोन एरिया। तो स्टोर वाटर, तो जो सिक्रेशन होगा तो स्टोर कर सकते हैं। आई थिंक इट इज important. It can be used to make a highly absorbent material as well. तो लिखा हुआ है कि सिंगल यूज ऑफ सैनिटरी नैपकिन कंटेंट डाइऑक्सिन विच पर्सन एनवायरमेंट पोल्यूटेंट भी होता है, और उससे सैनिटरी नैपकिन एट रिस्क ऑफ कैंसर बढ़ सकता है। द गिवन कल्टिवेशन ऑफ सीशल रिक्वायर्स लेस वाटर, लेस इन्वायरमेंटली डैमेजिंग देन कॉटन इंडस्ट्री। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉटन इंडस्ट्री को आप ज़्यादा वाटर इंसेंटिव क्रॉप है, तो इसको यूज कर सकते हैं और फिर ज़्यादा एब्जॉर्बेंट काम कर सकता है। तो शीशल, UPSC में शीशल पूछ सकता है, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन, लेकिन प्लांट है, कैसे इसको यूज कर सकता है, तो देख सकते हैं। लेकिन अभी चैलेंजेस है कि इट इज़ नॉट एट पार विद द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। क्वालिटी कंट्रोल जरूरी है इसमें। Justice of Bilkis Banu, as Supreme Court have said yesterday, it questions on remission, concept of remission. Prison state subject के अंदर में आते हैं। As a result, prison rule of the each state identify certain reformative and rehabilitative activities that prison can undertake in order to earn remission in few days. अगर उनका गुड बिहेवियर रहेगा, कंडक्ट अच्छा रहेगा, तो उसे रिमिट किया जा सकता है। 14 ईयर्स का सेंटेंस है तो कम करके 5 ईयर्स, 6 ईयर्स बीच में भी छोड़ा जाता है। तो मिनिमम 14 ईयर्स इन प्रिजन बिफोर दे कैन अप्लाई एलिजिबल फॉर द अप्लाई फॉर द रिमिशन लाइफ कन्विट के लिए। 14 ईयर्स हो गया नॉर्मल के लिए, फिर लाइफ कन्विट के लिए हमेशा के लिए, तो फिर 14 ईयर्स के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो रिमिशन के लिए। टोटल नंबर ऑफ डेज अर्न रिमिशन डेटेड फ्रॉम द एक्चुअल सेंटेंस इम्पोज बाय कोर्ट। लॉजिक इसका है कि जो पनिशमेंट इज डेटरेंट, तो एक नेगेटिव एस्पेक्ट में देखना नहीं चाहिए, उसको लेना चाहिए कि आप सामने वाला जो बॉडी है, मोर फोकस करना चाहिए फॉर द ट्रांसफॉर्मेटिव रोल ऑफ द प्रिजनर। प्रिजनर का माइंडसेट चेंज करने के लिए ज्यादा रोल करना चाहिए रादर देन कि इसको डेटरेंट। तो इसलिए एक रेमिशन कॉन्सेप्ट आता है कि प्रिजनर आर मेंट टू बी रिहैबिलिटेटिव स्पेसेस रादर देन सिंपली इंस्ट्रूमेंट दैट कैरी आउट द रिट्रीब्यूटिव पनिशमेंट। कि एक पनिशमेंट देने के हिसाब से उसको भेजा जाता है प्रिजन। प्रिजन में भेजा जाता है कि आप तो दूर रखिए समाज से, लेकिन कंटेम्पलेशन होना चाहिए अंदर में कि आप गलत काम किए कि नहीं किया। दूसरा चीज ट्रांसफॉर्मेटिव रोल होना चाहिए लॉन्ग टर्म। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि लूप होल स्टेट सब्जेक्ट में है तो उसमें निकाल करके और प्रिजन मैनुअल में चेंजेस और उसमें से निकाल करके आप उसको रिमिट कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट हैव सेड दैट देयर वाज अ factual error or factual incorrectness that was being given by the Gujarat government. So injustice they spoke to fraud, usurpation of power by the government. Exact word. It did not need to go into difficult or normative question. तो इसलिए जो रेमिशन नॉर्म्स है इंडिया में स्टेट के पास है, इट इज अंडर क्वेश्चन कि क्या प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस कैसे इस्टेब्लिश करना चाहिए, उसके लिए प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए।
तो ये बेल एक्ट का प्रोविजन है, रेमिशन का भी प्रोविजन, एक तरीके से एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। The first advanced estimate of national income for the current fiscal year present a picture of economy on steroid. Government spending. There is a high government spending. Or overall GVA growth, gross value addition growth. It is a GDP minus tax, gross value addition हो गया, and 6.9%, 7% for the agriculture, livestock, forestry, etc. So right now, more and more focus is on government spending on the capital expenditure, and from the last 2 years, there has been decrease in the revenue expenditure. ऐसे मनरेगा में allotment कम हुआ है, devolution of taxes in the मनरेगा wages, then also in the pension subsidies also has been reduced from last 2 years. तो बोल सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम किया गया, रैशनलाइजेशन किया गया स्कीम्स का विथ रिस्पेक्ट टू एमसीडी स्कीम्स, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उसमें स्कीम्स में रैशनलाइजेशन किया गया था, पोषण 2.0 और बाकी सब में, आईसीडीएस में, और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, गति शक्ति की बात करते हैं, भारत माला, फ्रेट कॉरिडोर एक्सेट्रा। आशिक, यहाँ पे जैसे आपने अभी जीवीए के लिए बोला, जीवीए में सब्सिडीज हम ऐड करते हैं, टैक्सेस सब्ट्रैक्ट होता है, हाँ, माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी, ट्रू, प्लस सब्सिडी है। सब्सिडी भी है। क्वेश्चन जैसे रिमिशन की बात हो रही है, हम प्रेसिडेंट और गवर्नर की बात करते हैं, उनके पास वो पावर है, तो वो सेम होती है या फिर अलग होती है, किस तरह से डिफरेंस होता है? जैसे स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट डिसाइड करेगी किसको एक रिमिशन में मिलना चाहिए। एक में आई थिंक दो में डिफरेंस है। डेथ पहला पेनल्टी कि में, डेथ हाँ, डेथ पेनल्टी पेनल्टी में और गवर्नर हैज नो रोल कोर्ट, इन डेथ पेनल्टी, प्रेसिडेंट सेकंड के कोर्ट पास होता है, मार्शल, गवर्नर के कोर्ट पास मार्शल पावर्स नहीं। नहीं होता, मिलिट्री से मैटर्स। गवर्नर कैन ओनली इंक्लूड द एरियाज ऑफ स्टेट लिस्ट के अंदर में जो भी होगा वो कर सकते हैं, और डेथ पेनल्टी कोर्ट मार्शल के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट के पास पावर है, तो पॉलिटिक्स में ले सकते नहीं। मानसी, लॉर्ड रामा waged the righteous war against Ravana and vanquished those who disrupted religious ceremonies. तो war can be righteous। तो राइट, यस इसका आल्सो। इन रामचरितमानस लॉर्ड राम्स कंपैशन स्टैंड आउट, क्योंकि हर जगह देखा जाता है। तो अगर आप राइटनेस कैसे है, तो जब, तो मैं ब्रीफ बताता हूँ कि वो जब लड़े भी थे ना, तो उनके अंदर में अहंकार नहीं था, उनके अंदर में गुस्सा नहीं था, वो बहुत काम स्थित प्रज्ञ थे उस समय भी। वो जब मार भी दिए थे तब भी एक तरह से नमस्कार किए थे उनके जो अंदर में ज्ञान को, और फिर उनको बोले, और बाकी सबको बोले हुए थे कि आप उसे एक वैसे ही बरियल दोगे, आप उसको वैसे ही सेरेमनियल बरियल दोगे जैसे होना चाहिए। और ये इंडिया फॉलो भी करता है। कारगिल के युद्ध के समय में जब पाकिस्तानी ने अपने सोल्जर को छोड़ दिया था कि जो किया जाए, वापस भी नहीं लेके गए थे बॉडी, तब इंडियन आर्मी ने वापस फ्लैग पुट करके, पाकिस्तानी फ्लैग पुट करके बरियल दिया था, और नमाज भी पढ़ा था वहां पर। तो ये दिखाते कि राइटियसनेस इन वॉर कैन बी डन, और वॉर गलत नहीं होता अनटिल अनलेस जो प्रिंसिपल ऑफ वॉर है उसको अपहोल्ड करे, और उसका इंटेंशन कैसा होना चाहिए। हाँ, वही आई वाज अबाउट टू से दिस, कि इंटेंशन पे फोकस करना ज्यादा वो डिटरमाइन करेगा वेदर इट इज जस्टिफाइड और नॉट। क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन भी उठता है, ऐसा नहीं है कि जब हनुमान जी को भेजा गया था लंका वहां बात करने के लिए, तो वो लंका ही जला दिए थे, तो क्या वो जस्टिफाइड था? तो ऐसा भी आज के हिसाब से कोई क्वेश्चन उठाते हैं, तो वी हैव टू थिंक ऑन वेरियस प्रिंसिपल। तो इसमें we discussed yesterday कि how Tamil Nadu is promoting investment in that state, 6.64 lakh crore already talked about various areas that is being promoted: e-vehicles, non-leather, footwear, mobile, artificial, advanced electronics, precision technology, aerospace, defense, information technology, digital services, etc. ठीक है। Tamil Nadu is making aim that it needs to become $1 trillion economy
बाय 2030। इसलिए इतनी जगह पे इन्वेस्टमेंट चाहिए उन्हें। और ई गवर्नेंस प्रमोट करने के लिए हमने स्मार्ट पोर्टल के रिगार्डिंग भी देखा था कि सबको एक साथ कनेक्ट किया जा रहा है तमिलनाडु ट्रू, करेक्ट। सिंगल पोर्टल। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि आज जो क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, आई थिंक एथिक्स वाले में, उसे पूछा जाएगा कि एथिक्स में इंटरनेशनल एथिक्स होता है ऐसा कुछ चीज, नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम होता है। तो इसमें बोला कि व्हाई इंटरनेशनल लॉज मैटर, कि देयर इज एथिक्स इन इंटरनेशनल लॉ प्रोवाइडेड दैट जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है वो काम करे ढंग से। यूनाइटेड नेशन में जो चार्टर में लिखा हुआ है, वेक हेग कन्वेंशन भी है, वेनिया कन्वेंशन भी है, हेग कोड ऑफ कंडक्ट भी है, यूएनएचआरसी भी है 1948, सब दिया हुआ कि आपका इंटरनेशनल एथिक्स कैसे, आपको लड़ाई लड़ना चाहिए, क्या वेपन्स यूज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है उसके लिए। फिर केमिकल वेपन्स कन्वेंशन भी है, ट्रीटीज ऑफ आउटर स्पेस भी है। तो इतने सारे इंटरनेशनल लॉज है और वो मैटर करते हैं। लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो इन्फोर्समेंट है, क्या वो सही डायरेक्शन में है? क्या जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर बायसनेस है? क्या नेशनल सिक्योरिटी सुप्रीम हो जाता है इगोइस्टिक फॉरेन पॉलिसी ऑफ द ईच स्टेट? तो ये उठता है क्वेश्चन, जो ऐसा अभी नहीं होता है। अभी भी गाजा इसराइल में जो गाजा में जो इसराइल हमास के बीच में वॉर है, सिमिलरली इन रशिया यूक्रेन, सिमिलरली इन येमेन क्राइसिस बिटवीन ह्यूथी रेबल्स इन येमेन एंड टोटल जीसीसी। फिर वैसे ही मेक्सिको में बात करते हैं, ड्रग कार्टेल के बीच में वॉर है। वैसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में चलते रहता है, क्लैशेस चलते हैं। म्यांमार का बात करते हैं, तो हर जगह चलते हैं। तो क्या सक्सेसफुल है मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन? तो ये बात करते हैं। तो इसमें बात करते हैं मल्टीलैटरल जो इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल लॉ है, इट इज लेस्ड बाय इंपीरियल एंड कॉलोनियल चार्टर। उन्हीं का ही एक वेस्टर्न माइंडसेट था कि आपको इंटरवीन करना है, सॉवरेंटी प्रिंसिपल को अपहोल्ड करना है कि नहीं करना है। इराक वॉर में नहीं किया गया, अफगानिस्तान वॉर में नहीं किया गया। 1991 में जब वॉर आता है, पहला गल्फ वॉर बोलते हैं, उसमें भी नहीं किया गया। वियतनाम वॉर में नहीं किया गया, कोरियन वॉर में नहीं किया गया। तो इतने सारे वॉर्स है अभी तक में, उसमें अपहोल्ड नहीं हुआ। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन टू अपहोल्ड द नॉर्मेटिव एथिक, जो स्टैंडर्ड दैट इज बीन प्रिस्क्राइब्ड इन द चार्टर, अटलांटिक चार्टर हो गया या फिर यूएन चार्टर हो गया। Significance of the international law cannot be limited to material outcomes, a fundamental attribute of the legal system. तभी जाकर तब है कि देयर शुड बी अ इंक्रीज रिफॉर्मेशन। तो ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेशन बनना चाहिए। इंडिया ऐसे बिग रिस्पॉन्सिबल कंट्री, उसका एक रिप्रेजेंटेशन बनना चाहिए यूएनएससी में, परमानेंट सिक्योरिटी। अभी जाके हो सकता है एक व्यू पॉइंट, 360 व्यू पॉइंट मिलेगा उन्हें, सब वॉर को कैसे देखते हैं। हो सकता है कि वेस्टर्न के लिए वो वॉर हो, ईस्टर्न के लिए नहीं हो। जो रशिया यूक्रेन के समय दिख गया, कोई भी ईस्ट कंट्री रशिया को बॉयकॉट नहीं किया एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। तो उनके पास एक था, एक अपने कोकून में रह रहे थे, वो टूट के। इंडियन टूरिस्ट आर इंपॉर्टेंट टू मालदीव्स। तो लक्षद्वीप इंपॉर्टेंट अटोल आइलैंड, साउदर्न मोस्ट लक्षद्वीप 11 टू 6 to 8 डिग्री चैनल था ना, कल डिस्कस किए थे। जो मालदीव्स है 9 9 डिग्री। 8 to 8, हाँ 8 to 9 डिग्री चैनल था, 9 डिग्री तो आई फिर थिंक, मालदीव्स 10 डिग्री अंडमान। तो मालदीव स्टार्ट होता है वहां से ही। और फिर बात करते हैं सेशल्स, इस तरफ है। मादागास्कर के बगल में मॉरिशस हो गया, पहले डिस्कस किए इसमें। तो इंडियन टूरिस्ट अभी 20% ऑफ इकोनॉमी डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म, और हाईएस्ट है इंडियन टूरिस्ट अराइवल धीरे धीरे। तो रैंक अगर देखा जाए तो रैंक 1 है रशिया, सेकंड है इंडिया इन टूरिस्ट इन मालदीव्स। Minicoy Island is the southernmost island in Lakshadweep. हम्म तो 20% ऑफ जीडीपी, इनडायरेक्टली 80% है टूरिज्म इंडस्ट्री मालदीव्स में। तो अटोल, वो भी मालदीव्स भी अटोल है मोस्टली, और ये भी अटोल लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप कैन बी प्रमोटेड फॉर टूरिज्म। तो इसमें हम लोग बात करते हैं कि स्पोर्ट्स टूरिज्म हो गया, फिर